بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے اور اس کا آغاز انہوں نے خود کیا تھا 2019 میں 5 اگست کو انہوں نے کشمیریوں کے جو مخصوص قوانین تھے ان کو ختم کیا اور وہاں پہ ایک غیر انسانی قسم کا کرفیو لگا دیا۔ پاکستان نے ان کو وارن کیا، دنیا نے ان کو منع کیا، لیکن وہ باز آئے نہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ان کو خطاب دیا تھا کچھ چیزوں کا، اور کچھ نئی چیزیں ہیں جو دنیا کو RSS آئیڈیالوجی اور ہندوتوا کے بارے میں بتائی تھی۔ اس سے پہلے دنیا شاید اس کو جانتی نہیں تھی، یا ان کے اوپر بات نہیں کرتی تھی، یا کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ لیکن اب ہوا کیا ہے، پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا اور یہ کیوں ہوا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈسمینٹلنگ گلوبل ہندوتوا، یہ ایک کانفرنس ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پہ عالمی کانفرنس ہوئی ہے جس کا نام ہے ڈسمینٹلنگ گلوبل ہندوتوا، یعنی عالمی ہندوتوا کا خاتمہ۔ یہ کیسے کیا جائے، اس کے اوپر ایک عالمی کانفرنس ہوئی ہے۔ اس کانفرنس کے اندر میں نے جو اخبارات ابھی پڑھے ہیں یا جن ویب سائٹ سے دیکھی ہے، یہ 4-5 ہے، میں آپ کو ان کا حوالہ دے دیتا ہوں، آپ نکال کے اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں اسٹریٹجک فورسائٹ فار ایشیا، ساؤتھ ایشیا جرنل، دا انڈین ایکسپریس، انہوں نے حالانکہ اس کو نیگیٹو میں لکھا ہے لیکن پھر بھی ان کو رپورٹ تو کرنا پڑا، انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ بھارت کے بیشتر اخبارات کو رپورٹ کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، بھارت کے میڈیا کو بھی دبا دیا گیا ہے کہ یہ خبر باہر نہ آئے۔ یہ وہ خبر ہے جس کو بھارتی ہر لحاظ سے چھپانا چاہ رہے ہیں، بین الاقوامی میڈیا پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اپنے دوست ممالک پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اپنے ذاتی میڈیا کو انہوں نے بہت زیادہ جکڑ لیا ہے کہ یہ خبر باہر نہ آئے۔ لیکن خبر تو خبر ہے، رکتی تھوڑی ہے۔ پھر یہ چھپی ہے فرسٹ پوسٹ میں، اور اس کے بعد ان کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے ڈسمینٹلنگ گلوبل ہندوتوا، وہاں پہ بھی یہ چھپی ہے۔ اس میں ہوا کیا، اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے دماغ بہت کم اکٹھے ہوتے ہیں۔ بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں جو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اکٹھے ہو کر ہندوتوا کے نظریے کے اوپر اور بھارت کس طرف جا رہا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور بھارت کو اس پہ کتنی پریشانی ہے وہ اسی رپورٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کچھ دنیا کی 50 جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، یعنی جو دنیا کی سب سے بڑی ٹاپ کی 50 یونیورسٹیز ہیں، ان کی فیکلٹیز، یعنی ان کے وہ فلاسفرز جو ساؤتھ ایشیا کو اور انڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں، یہ ان کی رائے ہے، اور وہاں سے یہ چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں۔ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں اس میں، NGOز بھی ہیں اس میں، میڈیا بھی ہے، بین الاقوامی صحافی بھی ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر وہ تھنک ٹینکس ہیں جو ساؤتھ ایشیا کو یا انڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہ ہندوتوا کو ایک بہت بڑے خطرے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، پریسٹن یونیورسٹی اور کارنیل یونیورسٹی، نیو یارک یونیورسٹی، یہ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ اور ان یونیورسٹیز میں پڑھانے والے ذہین ترین اور دنیا کے بہترین دماغ وہ انڈیا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ بہت الارمنگ ہے۔ اسی لیے انڈیا اس کو چھپانا چاہتا ہے، اس خبر کو دبانا چاہتا ہے، لیکن ہم شور مچائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سب کے ساتھ شیئر کریں اور سب کو بتائیں کہ انڈیا کے بارے میں چھپا کیا ہے۔ یہ 3 دن تک کانفرنس چلی ہے جی، اور اس میں جنوبی ایشین سٹڈیز کے جو معروف اسکالرز ہیں پوری دنیا سے وہ شامل تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ اقلیتوں کو بچایا جائے، مخالفین جو ہندوتوا کے ہیں یا جو پولیٹیکل مخالفین ہیں یا جو ان کے سامنے آتے ہیں کسی بھی کنفلکٹ کی صورت میں، ان کو بھی بچایا جائے، اور عام لوگوں کو تحفظ دیا جائے اس سوچ سے جو انتہا پسند ہندوانہ سوچ ہے۔ وہ سوچ کیا ہے، اس کے اوپر یہ پوری کانفرنس ہوئی ہے۔ یعنی یہ ایک بے مثال کانفرنس تھی اور گیم چینجر ثابت ہوگی، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کانفرنس کے جتنے منتظمین تھے ان سب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کانفرنس گیم چینجر ثابت ہوگی بھارت کے لیے، اور بھارت اب تک جو امیونٹی لے رہا تھا، پوری دنیا کے اندر بھارت کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ سلسلہ ویسا رہے گا نہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی آواز ہے، بہت سارے لوگوں کی آواز ہے، بہت پڑھے لکھے لوگوں کی آواز ہے، اور بہت بڑا تھنک ٹینک ہے۔ وہ کہتے کیا ہیں پہلے آپ وہ سنیں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں سب سے پہلے کس نے کہی تھی۔ اس میں ہندوستانی سماج اور سیاست پر عوامی تبصرہ نگاروں کو اکٹھا کرنا تھا، اس کا مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد تھا کہ اقلیتوں کو اور مخالفین کو اور عام لوگوں کے حقوق کو بچانا جن پر ہندوتوا کے حامی حملہ کرتے ہیں۔ کانفرنس نے اس نظریے کو فروغ دیا کہ یونیورسٹیوں کو تعلیمی آزادی کے اصول کو فروغ دینے اور ان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔
हिंदुत्वा से वाबस्ता अफराद की तरफ से डराने धमकाने की बड़े पैमाने पर मुहिम की कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हुआ ये है कि जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी या इसका इनेकाद हो रहा था, इसकी तैयारियां हो रही थी, तो उस वक्त इंडियंस ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था और जो हिंदुत्वा या आरएसएस के मानने वाले हैं उन्होंने बहुत धमकाया था उन लोगों को कि इस कॉन्फ्रेंस में मत जाना। कॉन्फ्रेंस को ना सिर्फ 50 टॉप यूनिवर्सिटियों की भरपूर हमायत हासिल थी, बल्कि कॉन्फ्रेंस में 900 से ज़ायद माहिरीन तालीम ने हिस्सा लिया। ज़्यादातर पैनलिस्ट हिंदुस्तानी माहिरीन तालीम थे जो मगरबी ममालिक में टॉप यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं और बतौर थिंक टैंक काम भी कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं, लिहाजा उन्होंने गुमराह रहने का फैसला किया है। आरएसएस के गुंडे मुसलसल मुंतज़मीन को हरासा कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि आपको भी जान से मार देंगे, आपके अहले खाना को भी जान से मार देंगे, इन कोशिशों से दूर रहो। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो हो गई, वो कामयाब भी रही। इन लोगों ने दबने से इनकार कर दिया। लेकिन ये जो लोग कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, अब इंडिया में उनके अहले खाना महफूज नहीं है, उनके घरों के ऊपर जो है वो किसी भी वक्त हमला हो सकता है। वो लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात बहुत दिल खोल कर कही है। वो क्या कहते रहे हैं? उन्होंने कहा कि इन माहिरीन तालीम को ये भी शिकायत की गई उस कॉन्फ्रेंस में, मोदी सरकार की सरपरस्ती में धमकियां मिली हैं। यानी कुछ सरकारी लोग हैं वो भी मना करते रहे हैं कि किसी सूरत भी ये कॉन्फ्रेंस ना करना। ये हैरान कुन है कि भारत जो कि एक जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है, उसे अपने शहरियों की तालीमी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की परवाह नहीं है। ये भी इस कॉन्फ्रेंस का जो एक पूरा बाद में पेपर आया है, जो आउटकम आया, उसमें ये लिखा हुआ है। मैं वहाँ से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, अपने से नहीं बता रहा कुछ भी। धमकियों, तशद्दुद और मनफी प्रोपेगेंडा की एक बड़ी मुहिम के बावजूद कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन मुनक्कद हुई। धमकियाँ अब तक मौसूल हो रही हैं। सवाल ये है कि हिंदुत्वा है क्या? ये वो सवालात हैं जो वहाँ पे उठाए गए हैं और इसकी तारीख क्या है। हिंदुत्वा की इस्तिलाह 19वीं सदी में सबसे पहले आई थी। इसकी दास्तान ब्राह्मणिज्म में गहरी जड़ें रखती है। यानी जो ब्राह्मण है ना, हिंदुओं की बहुत सारी ज़ातें हैं, उनमें तो सबसे तगड़ी और बड़ी ज़ात है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो हिंदू है जो इबादत के काम करता है। यानी मंदिर इसके पास होता है, मंदिर की चाबियाँ इसके पास होती हैं, मंदिरों के खजानों की चाबियाँ इसके पास होती हैं, मंदिरों का चंदा इनके पास जाता है। यानी ब्राह्मणों के पास इतना सोना है कि इतना सोना अमेरिका रियासत के पास भी नहीं है। अमेरिकी रियासत से ज़्यादा सोना हिंदू ब्राह्मणों के पास है। हिंदुस्तान की हुकूमत के पास जितना सोना है उससे 10 गुना ज़्यादा सोना इन हिंदू ब्राह्मणों के पास है। जितना पैसा इनके पास है, इंडिया उतना बजट भी नहीं बना सकता कभी। ये ब्राह्मण इतने ताकतवर हैं, इतने ज़्यादा वसाइल हैं इनके पास। तो वो कह रहे हैं कि इनका जो इनकी आगाज़ है, इनकी बुनियाद है, वो ब्राह्मणिज्म है, जहाँ पे एक ज़ात को दूसरी ज़ात पे फौकियत है और एक ज़ात के पास सारा कंट्रोल है। और उस कंट्रोल के लिए वो अपने मजहबी जज्बात को, तशद्दुद को और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हवा देते हैं जिससे उनको ज़्यादा पजीराई और ज़्यादा पैसा मिलता है। इसका नज़रिया तशद्दुद, नफ़रत, दहशतगर्दी पर मबनी है और जमहूरियत का दुश्मन है। ये हिंदुत्वा का नज़रिया, हिंदुत्वा का नज़रिया के हामी मकासद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं और बदतरीन तशद्दुद करने से भी गुरेज नहीं करते। यानी तलवारें लेकर, डंडे लेकर ये हमला करते हैं। आरएसएस के क़याम के बाद हिंदुत्वा बहुत ज़्यादा फैला है। अब ये आ गई वो तंजीम आरएसएस जिसके बारे में बार बार बात होती है। आरएसएस एक दाएं बाजू की हिंदू कौम परस्त नीम फौजी रज़ाकार तंजीम है जिसकी बुनियाद 1925 में केबी हेडगवार नामी शख्स ने रखी थी। ये जो हेडगवार है ये केश बलीराम हेडगवार इसका नाम है। बेसिकली मैंने इस पर पूरा वीलॉग भी किया हुआ है, पूरी एक वीडियो अगर आप चाहें तो पीछे हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह इस बंदे ने ये तंजीम बनाई और कैसे ये तंजीम कत्ल गारतगिरी करती रही। इंडियन वज़ीर आज़म को भी इन्होंने मार दिया था। 2020 में आरएसएस के मेंबर्स की तादाद, जो ट्रेंड मेंबर्स हैं, यानी जो फ़ौज की तरह ट्रेंड है, जो लठ चलाना जानते हैं, हथियार चलाना जानते हैं, तलवार चलाना जानते हैं, ये वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं। ये 6 लाख से ज़्यादा हो गए थे 2020 तक और अब इनकी तादाद और बढ़ रही है। ये ट्रेंड गुंडे हैं और इसकी 60,000 से ज़ायद ब्रांचेज़ हैं, जिनको ये शाखा कहते हैं अपनी ज़बान में। 60,000 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। आरएसएस ने अपने नीचे दर्जनों शाखें बना ली हैं, जिनमें ट्रेड यूनियंस भी बनाई हैं, जिनमें ख़वातीन विंग भी बनाए हैं, तलबा विंग भी बनाए हैं, इक़्तिसादी या माशी विंग भी बनाए हैं। इस तरह ये पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर फैलते चले जा रहे हैं। द प्रिंट
जो एक मारूफ हिंदुस्तानी अखबार है उसके बारे में एक एनालिस्ट ने यहाँ पे बताया इस कॉन्फ्रेंस में कि उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, और वो रिपोर्ट दिखाई गई, हुक्मरान जमात बीजेपी जो है इस वक्त भारत में जिसकी हुकूमत है, उसके हर 4 में से 3 वजीर आरएसएस के रुकन है। यानी अगर उनके पास टोटल 20 वज़रा हैं तो 20 में से उनके 15 वजीर जो हैं वो आरएसएस के होंगे हर सूरत में। हर 4 में से 3 यानी 75% वज़रा आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं भारत के। और नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म है वो भी आरएसएस से उसका ताल्लुक़ है। यहाँ मसला ये है कि मोदी के मातहत भारत बीजेपी और आरएसएस ऐसी तमाम कॉन्फ्रेंसेस समेत दीगर तालीमी मनसूबों से खौफजदा क्यों है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से उलमा यानी जो इल्म रखने वाले लोग हैं वो सहाफ़ियों, कारकुनों ने शिरकत की, जिन्होंने हिंदुत्व की तारीख और तरक्की का जायज़ा लिया। शुरा ने भारत के अंदर और बाहर आरएसएस के मजालिम को भी बेनकाब किया है। इस कॉन्फ्रेंस में फाशिस्ट नज़रिए के तूल व अर्ज़ की वजाहत और इसकी दीगर सरकर्दा तहरीकों का भी जायज़ा लिया गया है। यानी इनसे जुड़े और कौन कौन से लोग हैं, ये और क्या, ये तो कब्ज़ा भी करते हैं भारत में, ये तो पैसा भी छीनते हैं, ये तो भत्ता भी लेते हैं, ये हर तरह की 2 नंबरी करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर ज्ञान प्रकाश और दूसरे मुकर्ररीन ने आलमी हिंदुत्व से बढ़ते हुए मसाइल पर रोशनी डाली, जिसमें इसके स्पीकर जो थे वो ज्ञान प्रकाश थे। ये भी एक हिंदू हैं, इंडियन हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ख़वातीन बिल्कुल महफूज नहीं हैं। ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए ख़तरात बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदुत्व की सियासी मईशत और ये किस तरह ज़ात पात का इस्तेहसाल करते हैं, यानी ये करते ये हैं कि पैसा सारा जाएगा ब्राह्मणों के पास और वो उसको रखेंगे और वो उसको खर्च करेंगे। किस किस ज़ात को कितना देना है उनकी मर्ज़ी है, पंडित को क्या देना है, किसको किस तरह उन्होंने नवाजना है, ये सारा चक्कर उन्होंने अपना एक इकनॉमिक साइकिल बनाया हुआ है। बैंकों को वो चलाते हैं, सिस्टम को वो चलाते हैं, तो वो बड़े तगड़े हैं। फिर उन्होंने कहा किस तरह रेप को सियासत के लिए हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इन सब मसाइल पर तफसीली बात, यानी उनके पास एक हथियार है कि हम बलवा करेंगे आपके इलाके में आकर, हम 1000, 2000, 5000 बंदे आएंगे, आपके घरों को तोड़ेंगे, आपकी औरतों को निकाल कर उनका रेप करेंगे। अगर आप इस रेप से बचना चाहते हैं तो सियासत में हमारी मदद कीजिए, जो हम कह रहे हैं वो करें। अब इस लेवल की सियासत इस वक्त इस पूरे रुए ज़मीन पे सिर्फ इंडिया में हो रही है। कहीं तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता दुनिया में ये होने का कि हज़ारों लोग ये धमकी दें कि हम, कोई लीडर आता है वो धमकी देता है कि मेरे 10,000 बंदे आ जाएंगे और आकर घुस जाएंगे तुम्हारे घरों में, तुम्हारी औरतों का रेप करेंगे, उनके साथ जबरन ज़्यादती करेंगे और तुम लोगों के सामने करेंगे। अगर इससे बचना चाहते हो तो फिर हमें पॉलिटिकल फ़ायदा दो, जो सियासी नज़रिया हमारा है उसके साथ चलो। आपकी पूरी कम्युनिटी हमें वोट डालेगी और साबित करेगी कि हमें वोट डाला है। वो खड़े होकर देख रहे होते हैं वोट डाला या नहीं डाला, बदमाश है, उनका कंट्रोल है पूरे भारत के ऊपर। लिहाजा उन्होंने कहा कि रेप को, ये बाकायदा इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, रेप इज़ अ पॉलिटिकल टूल इन इंडिया, कि भारत में रेप या जनाबिल जबर एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इन सब मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई है इस कॉन्फ्रेंस में। ये मौजू भी ज़ेर बहस आया कि किस तरह मोदी हुकूमत के मातहत हिंदुत्व ने कोरोना वबा को गलत तरीके से संभाला। यानी मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा दिया कोरोना फैलाते हैं। ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान को कोरोना होता है, वो सब्जियां चाट के लेके आता है ताकि आप वो सब्जियां पकाएं और आपको भी कोरोना हो जाए। पहले तो मुसलमानों को ही मारते रहे, उनका दूध लेने से इनकार, उनकी सब्जियां लेने से इनकार, उनकी दुकान से चीज़ें लेने से इनकार, उनका बाइकआउट करके उनको दीवार के साथ लगा दिया पहले मुसलमान, और उनके घरों तक को आग लगाई। और जब कोरोना फैल गया तो फिर मुसलमानों ने, क्योंकि उनकी मस्जिदें हवादार होती हैं, मस्जिद का डिज़ाइन मुख्तलिफ होता है, तो उन्होंने अपनी मसाजिद को खोला और वहाँ पे उन्होंने कोरोना सेंटर बना दिए मुसलमानों ने। और जो मुसलमान डॉक्टर थे वहाँ पे वो इलाज करते थे। जब अस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई थी इंडिया में, तब हिंदुओं को पता चला कि ये तो मुसलमान हमारे खैर ख्वाह थे, उन्होंने अपनी मसाजिद खोल दी हमारे इलाज के लिए। तो मुसलमानों ने क्या किया और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कोरोना को बड़ा मिस हैंडल किया। उसकी वजह से कोरोना फैला भी बहुत सारी झूठी खबरों का एक ड्रामा रचाया गया ताकि मोदी को नुकसान ना हो, ये नफरत में बदल जाए और अक़लियतों के ऊपर ये सारा मामला पड़ जाए। ये बात मैं आपको फिर बताऊं कि ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से सारे मुकर्ररीन आए थे और बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे और अपनी फील्ड में तमाम लोग मशहूर लोग थे। इस कॉन्फ्रेंस में रोशनी डालेगी किस तरह आरएसएस मोदी के मातहत दुनिया का सबसे मुनज़्ज़म, इंतहा पसंद, नफरत अंगेज ग्रुप बन चुका है। ये नाजी और अतालवी फाशिज्म नजरिए से मुतासिर है। ये हिंदुस्तान को एक सेकुलर जमहूरी से मजहबी रियासत में तब्दील करना चाहते हैं, जहां मुसलमान, ईसाइयों और दीगर मजहबी अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाए।
یہ باتیں اگر آپ یاد کریں تو سب سے پہلے یہ باتیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی تھی. یہاں پہ اور بھی بہت کچھ ہے اس کے اندر, یہ آپ جا کے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. مودی کیا کرتا ہے, RSS کیا کرتی ہے, ان کے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کس طرح لوگوں کو مارتے ہیں, کیسے ظلم کرتے ہیں, ہر چیز انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہے. یہ دنیا کے بہترین دماغ ہیں, ان میں انڈینز بھی ہیں. وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بھارت وہ نہیں ہے جس کام کے لیے بنا تھا. آج ایک سیکولر ملک نہیں ہے, ایک جمہوری ملک نہیں ہے, بلکہ بھارت کی جمہوریت صرف ہندوؤں کے لیے ہے. جیسا ہندوؤں کو چاہیے ویسا یہ ملک بن جاتا ہے اور ویسا ہی رہتا ہے. یہ بات سب سے پہلے اس دنیا کو 2019 میں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ فاشسٹ ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا رویہ نازیوں جیسا ہے, یہ ان کے نظریے کے اوپر چل رہے ہیں, یہ ان کے فالوورز ہیں. یہ جو سلوٹ کرتے ہیں جس طریقے سے سارے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے, یہ انہی والا انداز ہے. یہ ٹرینڈ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, یہ ہتھیار بھی ویسے ہی چلاتے ہیں. یہ انہی کی طرح دنیا میں کسی اور کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ اپنے آپ کو اول درجے کا انسان سمجھتے ہیں اور اس خطے کے اوپر کنٹرول اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ تبت سے لے کر نیچے پاکستان کے اندر ایک علاقہ ہے کلر کہار, اس کے پاس ایک کٹاس راج کا ایک بہت بڑا ٹیمپل بنا ہوا ہے. وہاں پہ ایک چھوٹی سی جھیل ہے, اس کو کہتے ہیں شیو کا آنسو. وہ کہتے ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک سارا ہمیں قابو کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. ویسے حلوہ تو نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور کنٹرول کر دیں گے, لیکن پھر بھی یہ نظریے کے ساتھ وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب بھارت میں بار بار نیوکلیئر ہتھیاروں کا مواد جو ہے وہ لوگ سمگل کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. درجنوں مرتبہ ایسا ہو چکا ہے, میں نے اس پہ ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا بھی تھا, جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے. تو بھارت کو نکیل ڈال دی ہے عمران خان نے, اور وہ کر دیا اس کے ساتھ کہ اب دنیا بھی اس بارے میں بولنا شروع ہو گئی ہے. یہ چیز ایسی ہے کہ نہ بھارت کو جلدی ہضم ہوگی اور نہ اس کو ہضم ہونے دی جائے گی. اب ایک ایسی شروعات ہو گئی ہے بھارت کے خلاف عالمی سطح پر جس کا خمیازہ اسے آنے والے سالوں میں بھگتنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.